Bilal. Thank you, Dr. Saab. Okay, so welcome to the next panel discussion on staying productive during the job hunt. We are not going to give you any break. My name is Adil Anwar. I am the head of human resource development for Metro Cash and Carry Pakistan. And before inviting the panel, would actually like to comment on the particular theme which we are discussing today, and that is the job hunt. Can anybody tell me what makes us South Asians, Indians and Pakistanis, most competitive nowadays in the talent war all over the world? Why are we seen as the most successful talent from the emerging markets? कोई उसका reason बता सकता है? Anyone? If you believe that we are one of the best, why do you believe like that? Nobody believe that we are one of the best? Ji. We are the best labor in the world. That means we have the best stamina to do hard work. Okay, that could be one reason. That's a good one. Or, ji. मार्केट में अपने आप को मनवाने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। जब वो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा वर्क करता है तो वो मार्केट में ऑलरेडी जाना और पहचाना जाता है दुनिया में। जैसे हम गल्फ़ देखते हैं या दूसरे कंट्रीज़ देखते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर, इंजीनियर्स और लेबर जो हैं वो दुनिया में रिकॉर्ड काम करके जाते हैं। इस वजह से आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया जो है वो पोटेंशियल किस्म की मार्केट प्रोवाइड करते हैं पूरी वर्ल्ड को। एक्सेलेंट। आपने जो बात की ना, ओवर पॉपुलेटेड है, सो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. That is the point I wanted to raise. Out of intense competition, you have to come out first, raise your level, and then you become visible, even at the local level. बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। और इसी चीज़ को हम लेके चलेंगे कि इस कंपटीशन को जब हम फेस करते हैं तो कौन से फैक्टर्स हैं इनको हमने सामने रखना है। हाँ। और we'll come back to you again, but let me introduce the panel now, and we have an expert panel to present their thoughts today. I first request Mr. Kamran Saeed, who is Director Marketing of Shazu Laboratories, to please come on the stage and take the panel. Now I'll request Ms. Kehkashan Awan, Head of Development and Training for Fatma Group. Ms. Kehkashan. We have a third panelist, who is Mr. Asim Shahzad Malik, who is the Business Unit Head, Human Resource Management for Pharma Health Pakistan Private Limited. Mr. Asim Shahzad. Okay, I'll start with Kamran Saeed, and after we have done the first round of questions, then we are going to open the Q&A session with all the audience. Kamran Saab, as we have just identified, that there's an intense competition in the market, and obviously that leads to a lot of stress, where we have hundreds and thousands of graduates passing out every year. So how to actually handle that stress and nervousness when you are looking for a job, and if you are taking some time to find your successful or dream job, how you manage yourself? Okay, right. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. दिल आपकी बात को आगे ले जाते हुए, first of all, I will divide this job hunt into two phases. One, when you just complete your education and you are looking for a job, and then when you already joined some job and you would like to progress and develop and will look for some opportunity in another organization or within your own organization. So first of all, I will touch the first phase. You see, this is the phase which is the most critical as far as the career of an individual is concerned. You have a kind of a sense of desperation. You have emotional stress. You are under a lot of anxiety, right? So that's the phase, because you are floating a lot of CVs. You are waiting when a call is going to come for the interview as well, right? So that's the phase which is the most critical as far as your success is concerned. Now, from my point of view, I have taken like six factors into it, which you must keep in your mind. First of all, you see, the first challenge which you're going to face in the job hunt is you will be interviewed. So the interview is going to be the biggest challenge for you, right? For the interview, you have to be emotionally charged, you have to be physically fit as well, you have to be emotionally stable to be at your peak or the optimum level when you are into an interview.
फॉर दैट मैटर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यू आर एज स्ट्रॉन्ग मेंटली एज यू आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग. So my first advice to all those students sitting over here, you will be going for the job hunt. सबसे पहले अपनी 5 वक़्त की जो जमात है नमाज है उसको ऑफ़र करो. You know what you are going to get out of it. You will be getting physically condition. You will be getting emotionally stable. You will getting spiritually conditioned as well. That's the first part of it. So once you do it, and you will also get maybe a lot of like blessing from the God point of view as well. Jab bhi kabhi, whenever you are under a lot of stress, please start with this, and I'm sure half of your stress is already gone. So that's the first phase of it. Then the other 4 factors which I'll be emphasizing over here will be the 4 P's. These are not the marketing piece. The first P is your persona, your personality. First of all, you must work on to it. I'm not saying that you can change your basic face जो अल्लाह ताला ने हमारा बना दिया है उसको हम बदल नहीं सकते. But maybe आज अगर मैं अपने बालों को spikes बना लूँ तो my face will totally change, right? मैं अपने बाल खींच के बना लूँ, my face will change as well. So you must see that how your personality can be in the best presentable way if you will be working on to it. So first part, the first P is the persona. The number 2, when I'm sitting in front of you, I am the personality. अल्लाह ने मुझे shape जो शक्ल दी है, मेरी जो कद है, मेरा जो color है, that's the part of my persona. But I have to package it as well. You see, जब आप job hunt पे होते हो तो आप अपने आप को market कर रहे होते हो. जब अपने आप को market कर रहे होते हो तो हम हमेशा वो चीज़ उठाते हैं जिसकी packaging अच्छी होती है. So which is the packaging is attractive, then it's much easier for someone to identify and pick you up as well. So the second P which you have to work during that particular period is your packaging part, which about your dressing and everything like that. The third P is your presentation, which is basically your communication, how you carry yourself, your non-verbal languages. You must work on to it. You see, why I will explain you why I am emphasizing on all these is parameter. And the final P is your passion. The energy which you are radiating. When you're entering in a room, उसके आने से पहले, आपके आने से पहले जो वहाँ पे एक एनर्जी रेडिएट करती है, दैट्स अ पैशन. प्लीज़ रिमेंबर, जितनी मर्जी ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन हो, जितनी मर्जी स्लो पेस ऑर्गेनाइजेशन हो, बट दे ऑलवेज वुड लाइक टू हैव द पीपल हु आर फुल ऑफ एनर्जी, right? So it's absolutely important. So you must work on to your passion, which is actually how you're going to radiate the energy when you're going for the interview point of view. So ये जो 4-5 point हैं, they're absolutely important. जो पहला वाला phase है उस point of view से. So if you will be working on to it, so I'm sure you will be utilizing your time more in a more productive manner. So that's what I can say as far as the first phase is concerned. Thank you, Kamran. We'll come back to you for further advice. We have talked about how to prepare your persona, how to actually energize yourself, how to build up the right presentation. But then at the same time, one other aspect that is important is the profile, which you are going to share with the assessors or the employers or the interviewers, and that is your CV, your achievements. So my next question to Kehkashan is about that. Usually when the fresh level graduates are applying, they have this question that we don't have relevant experience in the industry. And for that, we are not that comparative or not as attractive as those who have experience in that industry. What would you advise the students as how to build their profile so they are seen as more attractive or relevant to the particular industry where they are applying for? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. The first advice that I would like to hand out here is कि जो भी रेज्यूमे देख रहा होता है या रिक्रूटमेंट में कोई भी रोल प्ले कर रहा होता है, उनके लिए रिमेंबर व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ some sort of a success story. Remember, people love success and they love success stories. आपकी छोटी सी भी achievement जो है, that on the onset can actually generate a lot of interest, चाहे वो resume के through हो या वो in person हो. So people who are graduating, mashallah, close to graduating, or who feel कि उन्होंने अपने जॉब या करियर में कोई चेंज लानी है, मेक श्योर दैट आपके रेज्यूमे पे कोई गैप ना हो. वी टुडे
operate in a world जहाँ पे the churn out of career professionals and talented people is very high और उसके ratio से jobs available नहीं हैं. Let's face it, the worldwide recession has affected the job market tremendously, चाहे वो developed world हो या underdeveloping world हो. So what do we do? We have the knowledge, we have the skill, हमें organizations ने train कर दिया है, institutions ने train कर दिया है. What do we do? What we do is that we continue to use our strength and find the right job. When you graduating, by that time आपको पता होना चाहिए कि आपकी strength finance है या sales, marketing है या HR है, if you're a business graduate. Once you know your strength, make sure कि आप उन्हीं areas में apply करें. Do not mass produce and mass market your resume. So एक तो पहली ये advice है, know your strength. दूसरी ये एडवाइस है, कोई गैप नहीं होना चाहिए आपके रेज्यूमे पे. अगर आपने देख लिया कि जी मैंने सेल्स एज अ प्रोफेशन सिलेक्ट करना है, मेरी यही स्ट्रेंथ है, देन मेक श्योर कि आप while you searching for the dream job, you're not sitting at home, you're not writing blogs, you are not wasting time on the internet. आपने अगर सेलेक्ट किया सेल्स, आपने सेल्स में अपना सक्सेस स्टोरी बिल्ड करनी है, that is also that could be in a smaller organization also. Sales के किसी भी end को आप पकड़ लें, business to business sales कर लें, could be pharmaceutical, could be consumer product, work with a distributor. By the time आप अपने interview के लिए appear होंगे, you will know so much about your field in practical life that you will have a couple of success stories to talk about, and that is what engages the interviewer. They want to know कि आपने पढ़ तो लिया है, marks भी अच्छे ले लिए, अब आपने ये बीच में अगर कोई gap आया तो क्या किया. What is also important is that when you select your internship projects, don't just do random projects. ये नहीं कि जी वो उधर मेरे कज़न काम कर रहे थे तो जी लास्ट मिनट पे हम गए और हमने वहाँ पे उनसे पूछ लिया कि जी ये ब्रांडिंग कैसे होती है और आपका चैनल कैसे डेवलप होता है या आपके यहाँ HR के क्या प्रोसीजर्स हैं, और वो एक हफ्ते में हमने रिपोर्ट बना के दे दी. बिलीव मी, इंटरव्यू जब आप कर रहे होते हैं वो आपसे पूछेंगे कि जी आपने अपना प्रोजेक्ट किस पे किया था, और आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज टेस्ट करेंगे कि आपने प्रोजेक्ट ये वाला क्यों सिलेक्ट किया था. वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी, क्या इन्फॉर्मेशन आपने कंपनी को ला के दी, हाउ मच वर यू एबल टू रिमेंबर. टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, चाहे आप उसको रट भी लें. द रियल चैलेंज इज़ हाउ डू यू अप्लाई द नॉलेज टू द रियल लाइफ. आप PhD भी कर लें, लेकिन आप में अगर कैपेसिटी नहीं है कि आप नॉलेज को रियल लाइफ में ट्रांसलेट कर सकें और कुछ रिजल्ट्स दिखा सकें, then you will continue to be uncompetitive in the job market. So remember, know your strengths. बिजनेस में किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, किस में आपकी स्ट्रेंथ्स है. डू योर प्रोजेक्ट्स इन दैट एंड डू इन डेप्थ प्रोजेक्ट्स. कई दफ़ा आप जिन कंपनीज़ के लिए प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वही आपको जॉब ऑफर कर लेते हैं. And then if there is a gap between one job or the other, or gap between graduating and finding the job, stay busy in the field in which you want to find the job. If आप खुद सोचें कि if somebody comes to you for an interview और उनको उस field के बारे में पता है, for example I work in the fertilizer industry, if somebody comes in and says जी मैंने fertilizer के dealer के यहाँ काम किया है, मुझे पता है DAP क्या होता है और यूरिया क्या होता है और कैन और अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, I will be impressed कि ठीक है इनको पास जॉब नहीं था बट इन्होंने जाके डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर के पास किया, ही इज़ लर्नड द बेसिक्स, अब मुझे इनको 4 महीने ट्रेन नहीं करना पड़ेगा. सो दैट इज़, सॉरी आई टुक लॉन्गर टाइम देयर वाज, बट जस्ट वांटेड टू the mention of the projects actually remind me when I have been like teaching in universities, and after that when we ask the students about even the question who did the interview during the project, 60% of the students are not even able to recall the person they met. They will not be able to find in this competitive market with this attitude. Job नहीं मिलेगा फिर. That much. So we don't need free riders. We don't need free because you should own first and then you should mention that as your achievement. But we'll continue the discussion further and we'll take it to our next panelist, Asim Shahzad.
आसिम ये बताइएगा कि अभी सेल्स की बात हो रही थी एंड देन वी टॉक्ड अबाउट फार्मा इंडस्ट्री एज वेल. देयर इज अ परसेप्शन इन आवर कंट्री दैट इफ यू आर गिवन अ फील्ड जॉब दैट इज लेस प्रेस्टिजियस, लेस रिवॉर्डिंग, and it's not going to fetch you the right status in the society. Is it the right way to start with this mindset, or there are other ways to develop a successful career? आदिल, थैंक यू सो मच. आपने बहुत इस लिहाज से अच्छा सवाल किया कि चूँकि मेरी जितनी डेवलपमेंट है वो स्टार्ट ही फील्ड से है. फील्ड से पहले मैंने ऑफिस जॉब की ये देखने के लिए कि जॉब होती क्या है. इस सवाल की तरफ आपकी तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि मैंने अपना करियर स्टार्ट कैसे किया. आज ज़िंदगी में मैं आपके सामने यहाँ बैठ के इस मौके को खोना नहीं चाहता कि जब मैं जॉब ढूंढ रहा था तो उस वक्त क्या हुआ था. तो सारी बातें आज सुबह से मेरे जहन में बार बार आ रही हैं कि जब मैं जॉब ढूंढ रहा था तो मैंने क्या किया. तो आज जब एनालिसिस करता करता मैं यहाँ तक पहुँचा तो मैंने ये फ़ील किया कि मैंने किसी को ये नहीं कहा कि मुझे जॉब चाहिए. मैंने उनसे कहा कि आप बताइए मैं आपके लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ. उन्होंने कहा आप करके क्या आए हैं. मैंने कहा जी मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ सीख सकूँ. उन्होंने कहा हम आपको पैसे नहीं देंगे. मैंने कहा मैंने आपसे कहा भी नहीं है. उन्होंने कहा 6 महीने के लिए फ्री काम करना पड़ेगा. मैंने कहा मुझे बहुत फ़ायदा होगा इसका. उन्होंने कहा ठीक है आप कल से आ जाए, हम आपको 2 वक्त का खाना और जॉब देंगे, आप सीखें, आप जो अच्छा करेंगे हम उसको चेक करते रहेंगे. 6 महीने के बाद एट लास्ट उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि आपका 6 महीने गुजारें, लेकिन आपने 6 महीने जिस तरह गुजारे हैं हमें इंतहाई खुशी है कि हम आपको जॉब ऑफ़र करना चाहते हैं, तो आप जॉब करेंगे हमारे साथ. मैंने कहा जी आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो दिलो जान से कर रहा हूँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मैंने जॉब करनी, मैं तो पहले दिन से कर रहा हूँ. उन्होंने कहा ठीक है जी. आप यकीन कीजिए वो 4 साल मैंने वहाँ गुजारे और वहीं से भी मेरे दूसरे और तीसरी जॉब के इंटरव्यू वहीं उसी जगह से हुए और उसी इज़्ज़त और एहतराम से उन्होंने मुझे ये कहते हुए भेजा कि आप जहाँ जाएंगे कामयाब होने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, इसी पैशन के साथ जो आपने हमें दिखाया है. और एक वक्त ऐसा भी आया उसमें कि जिनसे मैं सीखता था वो छुट्टियों पे एनुअल लीव पे चले जाते थे और मैं उनका फ्री काम करता रहता था. इस चीज़ को मैंने तो फील ही नहीं किया. आज यहाँ बैठ के फ़ील हो रहा है कि शायद उस वक्त उन लोगों ने ज़रूर फील किया कि जिस बंदे को हम उस ज़माने में 30-35 हज़ार रुपया दे रहे हैं उसकी जगह एक फ्री बंदा काम कर रहा है उसी का सिखाया हुआ और उसी तरह कर रहा है जिस तरह हम चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में हम इन लोगों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. वो इदारा आज भी फ्री लोगों को रखता है और बहुत कुछ सिखाता है. आपका ये सवाल कि फील्ड की जो जॉब है, मैं ऑफिस की जॉब छोड़ के फील्ड में इसलिए गया कि मुझे ये ताल्लुक़ ही नहीं था कि फ़ील्ड की जॉब क्या मायने रखती है, ऑफिस की जॉब क्या रखती है. मुझे ये था कि मेरे जो सेटिस्फेक्शन है वो होनी चाहिए. मेरी सेटिस्फेक्शन मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स थे. वो क्या थे कि अपना एक ऐसा स्टेटस अचीव करना जिसमें मेरी जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो और मुझे ये खुशी हो कि जब मैं रात को सोऊंगा तो मेरा दिल और मेरा जहन दोनों मुतमईन होंगे. इसी सोच के साथ जब फील्ड में स्टार्ट किया तो फील्ड की जॉब इतनी चार्मिंग, इतनी खुश करने वाली और इतनी सेटिस्फेक्शन की जॉब थी कि 8 साल, 12 साल, 18 साल मैंने इसी जॉब को करते हुए गुजारे. और आज भी जब मैं ऑफिस में फोर्सफुली बिठा दिया गया कि नहीं यार अब आप ये भी कर सकते हैं, मैं आज भी अपने 70-60% टाइम फील्ड में गुजारता हूँ. बिकॉज़ वहाँ आपका वो कस्टमर मौजूद है जो आपको असल रेवेन्यू देता है, जिससे आप वो पॉलिसी बनाते हैं जिसमें आपकी टीम को कामयाबी मिलती है और आपके पास वो टूल्स आ जाते हैं जिससे एग्जैक्टली आप एक कंपनी को, एक कॉर्पोरेट इमेज को और एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. बिकॉज ऑफिस जॉब की अपनी अहमियत है, लेकिन बंद कमरे में बैठ के बनी हुई पॉलिसी एक खुले मैदान में जाके सुकड़ जाती है. लेकिन बहुत बड़े मैदान की बनी हुई बहुत छोटी सी पॉलिसी छोटे कमरे में बहुत बड़ी बन जाती है. सो आपका जो एक्सपीरियंस है, ख़ास तौर पे फील्ड एक्सपोजर और अपने कस्टमर से डायरेक्ट लिंक, वो बड़ा हेल्प करता है आपको ये सोचने में कि आप उस इदारे के लिए कितना हेल्पफुल हो सकते हैं. बहरहाल एक चीज़ इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फील्ड जॉब और इंटरव्यू और जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि हमने किस तरह टाइम गुजारना है. अभी हमारे रिसेंट एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर अमेरिकन एक फोरम में प्रेसिडेंट ओबामा जो है उनके गए, तो जो 2-3 बातें उन्होंने कोट की और बारहा की और बहुत अच्छे फोरम्स पे की. उसमें एक बात जो मेरी बहुत पसंदीदा बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा वहाँ फ़हद डोडी के जो वालिद हैं, जो डायना स्कैंडल में जो वालिद थे, लड़का जो फौत हुआ, उन्होंने एक बात ये कही कि मैं दुनिया के रिचेस्ट आदमियों में से, बड़ी चेन्स में से, बहुत नामवर लोगों में से शायद एक आध होऊंगा और मुस्लिम वर्ल्ड के 400-500 गिने हुए लोगों में से शायद एक होऊंगा. अब अगर मुझे किसी बंदे को रखना है तो मैं उस बंदे को रखूँगा जिसने अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो, चाहे फेल हो गया हो, वो फेलियर के साथ आ जाए तो मैं उसको प्रेफर करूँगा बनस्बत उस शख्स के
जो हार्वर्ड का ग्रेजुएट है। मेरे लिए वो नाकाम आदमी ज़्यादा कामयाब है जिसको ये पता चल गया कि नाकामी से अब कैसे बचना है। इसलिए जब आप फारिग हों, सबसे पहले आप ऐसे प्रोजेक्ट पे ज़रूर काम करें जिसमें चाहे नाकामी का आंसर हो, लेकिन आपकी कामयाबी के लिए एक सबक तो उसमें होगा। आप कुछ तो सीख कर उससे पहले आएंगे, और जब आप नेक्स्ट जॉब के लिए जाएंगे तो आप वो काम नहीं करेंगे जिसमें आप फेल हुए होंगे, और हो सकता है अगर आप उसमें कामयाब हो गए हैं तो आप कामयाबी की अलामत बन जाएंगे। बहुत रिसेंटली पीसी में एक साहब ने एक ऐसी इन्वेंशन शेयर की, आई एम सॉरी इफ आई एम टेकिंग लिटिल टाइम, उन्होंने एक ऐसी इन्वेंशन शेयर की, उसने कहा जी मैं पाकिस्तानी हूँ, दुबई से ये सोच कर आया था कि मैं अपने मुल्क में जाके वो काम करूँगा जो किसी ने नहीं किया। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कहते आप खड़े हो जाए। मैं खड़ा हो गया, एक मशीन से एक बल्ब जला और वो जल के बुझ गया। मैंने कहा ये क्या हुआ है? कहते जी मैंने आपका जो रेटिना है उसको स्कैन किया है, अब आपकी जगह दुनिया का कोई शख्स इस कमरे में इसके थ्रू एंटर नहीं हो सकेगा, बिकॉज जो रेटिना आपका है उसके अलावा किसी को मैच नहीं करेगा। और यही वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका ने हमारे एयरपोर्ट्स पे इंस्टॉल की हुई, ताकि पूरी दुनिया के जो रेटिना, या अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ख़ास तौर पे जो रेटिना स्कैन होते हैं और उससे कोई गलत बंदा जो है वो पास ऑन नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता। उसने कहा ये मेरी टेक्नोलॉजी मैंने कोई 30-35 हज़ार मुश्किल से बनाई होगी, हज़ार में, मैं इसको मार्केट में 1,50,000 की बेचता हूँ, तो मेरा ये फ़ख्र है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐसी चीज़ों पे काम करके कर गुजरना चाहिए। नहीं कामयाब होंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो कामयाब होंगे तो दुनिया देखती है। थैंक यू। Thank you. We will just start the second round. We actually thought that we have to expand the discussion of staying productive during the job hunt. Is it only about one job we talk about in one career, or there are more than one jobs? Career is a series or a pattern of jobs we overtake or undertake throughout our lifespan, productive lifespan. So I have another set of questions with our panelists, and that is about how to remain productive during the entire career of an individual. And I'll actually start with Kamran Saeed again, as he has the most grey hairs in the panel, so he must have changed the largest number of jobs as well. Kamran साहब ये बताइएगा कि जो compatibility है या employability का term हम इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे ensure की जा सकती है during the entire lifespan? First of all, जो आपने बात किया to have a job hunt when during you are in a job, बात यह है कि we discussed a lot about the X generation and Y generation, और आजकल की जो 2000 की generation है, this is known as millennials, आजकल उनको हम millennials कहते हैं। और उनके बारे में कहते ये हैं कि जी अभी जो करंट रिसर्च है डेवलप कंट्रीज़ में कि शायद 15 महीने से 16 महीने एक जॉब में रहेंगे, बिकॉज वो इतने वाइब्रेंट हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिमेन ओवर देयर for so long time. So which means that they keep on changing their jobs as well. Now let's discuss जो आपने बात की कि how we can ensure the compatibility. पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि जी हमारे ऑलमोस्ट जितने जॉब में हम लोग हैं, मेरा ख्याल है कि मोर देन 70% आर बाय डिफ़ॉल्ट एंड नॉट बाय चॉइस। इट्स वेरी क्लियर, हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई काम कर रहे हैं, आहिस्ता उसे अच्छा लगना शुरू हो जाता है, फिर हम करना शुरू कर देते हैं, वी बिकम द पार्ट ऑफ इट। हमने टाइम ज़ाया वहाँ पे कर दिया या लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, सो वी स्टे देयर। देखें, वी आर करंटली इन ए नॉलेज इकॉनमी। नॉलेज इकॉनमी का पहला प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पे जो नॉलेज है जो आज मैं गेन कर रहा हूँ, शायद अगले 1 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगा, ख़त्म, फिनिश्ड। So which means that the most important for us as far as the compatibility part is concerned to gain the knowledge. Whether you are pursuing a job, fresh as a fresh graduate, or when you are pursuing a job when you are already on a job. In both the cases, the most important thing or most important part is your confidence level. I know only one formula of the confidence. If you want to be confident, you must have the knowledge. If you want to have the knowledge, you must have the information. So which means that आप जिस भी industry में हो, you must try to gather as much information as possible so that you can keep on updating your knowledge, and that will give you the confidence as well. So whenever you are looking for some other opportunity, whether internally or externally, in all the cases, you have to be confident as far as facing the challenges of shifting the job or getting a promotion or job enrichment or job rotation. These all actually come under the job hunt. So मेरा perspective सबसे important ये है, you have to have the up-to-date knowledge for which you need to have the information, and that will give you the confidence to make the decisions whether you want to remain within the organization or you want to change your job. Should know about the expansion plans of the organization. Everyone, the industry and the industry as such. The industry as well. Okay.
Kehkashan, there is another myth in the market, and that is that there should be no gap in the resume. So if somebody has a gap of 6 months or 8 months or 1 year, we actually use all the ways in our society to fill that gap, right? So we'll actually take extra favors, we'll perhaps exaggerate or inflate, you know, whatever information we have. Is that the only criteria when you're looking at the CV, you know, especially of an experienced candidate, or you see it from some other perspective? जी, इसमें ये कि अगर resume में gap आता है, and usually when we are interviewing and we ask people कि जी या आपने job क्यों छोड़ा और बीच में 1 साल हो गया, 1 साल से आप क्या कर रहे हैं, तो कई दफ़ा तो एक genuine answer होता है, they were family related issues, they had to, you know, लाहौर छोड़ के कहीं और जाना पड़ा, कुछ इस तरह के pressures, और अब वो दोबारा job market में वापस आ रहे हैं. कुछ लोग कहते हैं जी we were jumping the job track. Jumping the job track का मतलब है, and I think I wouldn't advise you to do it now, but maybe 10 to 15 years into your career when you want to do something different, which I have done in my career also, कि आप कुछ मुद्दत freelance करें, you want to be an entrepreneur and do something different. But problem वहाँ आता है जब लोगों की resume पे gap भी होता है, वो कहते हैं जी हमने company छोड़ दी because issue था. So उससे ये लगता है कि जी आप इमोशनली बहुत हाईली स्ट्रंग हैं, और अगर नाराज़गी हो जाती है तो नाराज़गी के बेसिस पे आप सो वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि पॉइंट्स इंसान के कम हो जाते हैं. सो दैट इज़ द ओनली एरिया विच इफ़ यू शुडंट लीव अ जॉब बिकॉज यू आर अपसेट. कभी भी गुस्से में या इमोशनल स्टेट में इस तरह की डिसीजन नहीं लेनी चाहिए. आई वुड एडवाइज़ यू नॉट टू डू इट. इफ़ यू डू इट then very quickly उसका आप डैमेज कंट्रोल करें, do something else in the industry, उस गैप को ना छोड़ें. So you know, because staying occupied, especially in the first few years of your career, is extremely important, because आपका वो आप learning curve पे होते हैं, and it's a steep learning curve because जैसे knowledge economy की बात हुई, आपको बहुत सी academic के अलावा बहुत सी चीज़ें industry की और बहुत कुछ सीखना होता है to improve your competitiveness or improve your ability to contribute to the organization. Very quickly, I'd just like to add कि आपने ये सोचना है कि आपने करियर के शुरू 5-6 साल में करियर बनाना है पे फोकस करना है या पैसे बनाने पे फोकस करना है. Usually लोग this generation, the XY and now the multitasking generation, ये लोग कहते हैं जी 20% इंक्रीमेंट मिल गया ना तो हम नेक्स्ट नौकरी पे चले जाएंगे. होता ये है कि आप 5-6 साल बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, बट 6th ईयर में आपकी जो सैलरी होगी और आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसमें कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज़्यादा होगी. 6th ईयर के बाद आप स्टक हो जाएंगे और ग्रो नहीं कर सकेंगे. और जो इंसान जो स्लो एंड स्टेडी जिसने ग्रो किया है वो 7th, 8th, 9th ईयर में जाके आपसे आगे निकल जाएंगे. सो वेरी क्विक मूव्स मीन, देखिए जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि 6 महीने इज़ द जेस्टेशन पीरियड. 6 महीने में आपने उस इंडस्ट्री के बारे में सीखा है और अगले 2 साल आप उस इंडस्ट्री में और उस कंपनी में कंट्रीब्यूट करेंगे. जब भी हम देखते हैं कि ये रेज्यूमे जी 12 महीने हुए हैं और ये आ गए हैं इंटरव्यू के लिए, ये अपनी कंपनी छोड़ना चाहते हैं, और उनसे पूछें क्यों तो वो कहते हैं जी बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए. दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ अ रोलिंग स्टोन इज़ व्हाट द टर्म वी यूज़. सो डोंट बिकम अ रोलिंग स्टोन. Don't invest in सिर्फ पैसे बनाना, invest in your career, which means your depth of knowledge. In your field again, develop that depth of knowledge. And that cannot happen अगर आप हर 1.5 साल 2 साल जो है वो job shift करते रहेंगे. Again, I'll link your point to the next panelist, and that is depth of knowledge. Again, there is a trend we have seen in the industry that people keep on waiting for organizations to invest on them. So they'll not go attend any training if the organization is not planning for them, right? Or they'll not even start any other program for their own personal professional development, and that actually adds the gap in their profile, and that keeps on adding. How would you suggest the generation sitting here, how should they keep themselves professionally updated about what is happening in the industry and what are the qualifications which are required for them to be competitive in the market? Thank you. Again, I'll say it's a wonderful question.
बिकॉज़ ये वो जगह हैं जहाँ पे हम आके बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं जब लोगों को हायर करते हैं। किसी को हायर करते हुए सिर्फ एक चीज़ तकलीफ़ देती है जब वो कहता है जी मेरे घर में पैसा नहीं है, या मेरे बहन भाई डिज़र्व करते हैं कि मैं नौकरी करूं, या मुझे ये नौकरी चाहिए हर हालत में। ये सारे सवाल इंतहाई तकलीफ़ का बायस बनते हैं, क्योंकि जब उसको कहा जाता है कि ये एक परफॉर्मा फिल कर दें तो उसका मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो खाली आते हैं, जो ब्लैंक्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। अब उस वक्त आप उस बंदे को रखते हुए एक्चुअली चीट कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसने आपको हायर किया कि आप अपने से बेहतर बंदा उस जॉब के लिए ढूंढें जिसको फिल होना चाहिए। अब इस तरह के जब कॉम्प्रोमाइज़ आते हैं तो फिर क्वेश्चन यही होता है कि क्या किया जाए। फिर हमने एक हल निकाला, उनसे कहा कि आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना, यू डू इट विदाउट पे, you work with the rest of our team, say about couple of weeks, maybe a month, or sometimes 3 months even. If you can sustain that period and if you are productive in that period at the same time, तो maybe we can consider you. उसके बाद भी जब evaluate करते हैं तो हम उसके skill के साथ सबसे पहले उसके knowledge को देखते हैं कि किस हद तक इसका knowledge compatible है उस particular job के लिए, उस seat के लिए। और बहुत दफ़ा हमने देखा कि ऐसे लोग बहरहाल improve कर जाते हैं, क्योंकि जो 2 महीने 2 हफ्ते गुजार सकता है और ये सोचता है कि पैसा भी ना मिले लेकिन फिर भी मैं काम करूँगा, तो वो आम तौर पे इंडक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग इंडक्ट होने के बावजूद भी उनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाती है। ये जो स्लो होना है ये अल्टीमेटली उनके अपने इमेज को ख़राब करता है। अगर ऐसे ही लोग अगर थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी सी मेहनत करके, जैसे आज सुबह के एक पैनल में डिस्कशन हो रही थी कि थोड़ा सा वेबसाइट ही बंदा देख कर आ जाए। आप किसी भी इदारे में जा रहे हैं और उसकी सिर्फ वेबसाइट को एक दफ़ा स्टडी कर लें कि इसके बारे में प्लस माइनस थोड़ा सा जान लें, और उसके बाद अपने स्किल मैच करके उन्हीं स्किल को आप वहाँ पे इंटरव्यू में या अप्लाई करते हुए या नंबर ऑफ़ ओकेजन्स पे जब भी आप इंटरव्यून करते हैं उनके साथ या एक्सपोजर आपको मिलता है तो वहाँ आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नॉलेज के हवाले से कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। आप 2 महीने बाद कर लें, 2 महीने पहले कर लें, चॉइस आपके पास है। जो लोग 2 महीने पहले करके जाते हैं यकीनन वो अपनी जगह जल्दी बनाते हैं। अब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे भी सामने आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड सैलरीज के साथ, बहुत ज़्यादा स्किल के साथ जाते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानने की कोशिश की जिन वो इंटरव्यू वाले कमरे से बाहर निकलते कहा यार कमाल कर दिया, मैं तो बड़ा तंग करके आया हूँ उसको, या मैंने खुद इतने सवाल किए कि वो परेशान हो गए। इस तरह के एटीट्यूड के साथ जाना ये नॉलेज नहीं है, ये स्किल भी नहीं है। आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को खुद अपने हाथ से ज़ाया कर रहे हैं जिसके बारे में अगर आपको बेहतर इल्म होता तो आप कभी ऐसा ना कर पाते। सो नॉलेज के हवाले से, फिर उसके बाद उसकी शख्स की प्रोग्रेस के हवाले से, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को ही ले लीजिए, या मेरी स्पेशलिटी चूँकि सेल्स एंड मार्केटिंग एंड HR फार्मास्यूटिकल के हवाले से है, उसमें किसी कदम पे भी हम कोई बंदा ऐसा अफोर्ड ही नहीं कर सकते जिसका नॉलेज कंपेटिटिवली या उस पोजीशन के हवाले से अपडेटेड ना हो। एक छोटा सा बैच जिसमें पानी 15 मिलीग्राम डालना है, आपने 16 डाल दिया तो वो ख़राब हो जाता है। एक कप सिरप जिसको बनाते हुए चीनी की मकदार आपको से कि 15 किलो डालनी है, 17 किलो डाल देंगे तो पूरे का पूरा बैच ख़राब हो जाता है। और उस बैच को वेरीफाई करने के लिए इंडस्ट्री बैठी है, मिनिस्ट्री बैठी है, और सबसे बड़ी बात आपके कंपेटिटर के बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो नॉलेज की अहमियत से किसी सूरत इनकार मुमकिन नहीं है। अब वो काम कौन करता है? बहुत सारे केसेस में ये काम एक छोटा सा अनपढ़ बाज़-औक़ात टेक्नीशियन भी कर सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी एक फार्मासिस्ट के ऊपर है जो इंतहाई क्वालिफाइड है उस काम को करने के लिए। अब उसका स्किल और इसका नॉलेज मिल के उस चीज़ को गारंटी करते हैं कि ये दोनों काम ठीक हों। इस लिहाज से आई विल से कि आप विदाउट एनी जॉब नॉलेज, पर्टिकुलरली टेक्निकल जॉब्स के हवाले से जहाँ पैसा भी ज़्यादा है और ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा हैं, वहाँ नॉलेज के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता। Great. Thank you for again a very detailed advice, which is very useful for all our audience. Now we have the fourth panelist with us, Lisa Asher. We welcome you on board. Lisa, we have been discussing about how to stay attractive and compatible in the market. In your experience, what have been the red flags and green flags when you are looking at a profile, and what attracts you from an employer perspective? Assalamu alaikum everyone. My name is Lisa Asher and I'm working with Al Razi Healthcare as a training head. When we see any employee or prospective employee coming in the organization, but we see especially not degrees definitely count a lot, but the thing for our perspective is like to see the positive attitude in a person.
how dedicated he is for the work. Because आजकल जो problem market में चल रहा है, और I can understand the young generation कि वो लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि बहुत जल्दी तरक्की कर जाएं, you know, but you have to be very motivated. अगर आपको entry level की भी job मिलती है, then you have to be very patient. जो कि patience का level जो I can understand कि as a nation हम लोग के अंदर बहुत कम होता जा रहा है, और है भी, वो we should, you know, like agree on this thing. एक तो ये चीज़ है, प्लस सेकंड थिंग के व्हाट आई कैन सी इन पीपल, they are very overconfident. Sorry to say this thing, but being a training head, I can understand this factor कि हमारे जो भी लोग आते हैं, they think कि जैसे अभी I'm sorry आपको मुझे नाम नहीं पता, आसिम, जैसे आसिम साहब अभी he said a very right thing कि जैसे हम लोग इस फैक्टर को बहुत इग्नोर नहीं करना चाहिए. Knowledge counts a lot, expertise counts a lot, but the thing which counts a lot is like the positive attitude towards your job, towards your work. ये चीज़ें जो है ज़्यादा important होती हैं, in my opinion. So we can't say at you know the last hour of the job that we have an equally important assignment, you know, outside the work environment we are leaving. In the initial few years, you have to work harder to prove yourself, you have show yourself positively, and you know, and then the rewards would come later. As and second Kehkashan has thing is also like said. जैसे team building वाला aspect है, ये सारी चीज़ें बाद में आती है. सबसे पहले जो आपका एक चीज़ आती है, which is like the positive attitude in you. That's important actually. Okay, जी. So let's see how positive are the audience, you know, after listening to all this. आपका stamina आज हम check करें कि आप कितनी discussions को absorb कर सकते हैं. And I know this is the last one, but I'll come to you myself and we'll take some questions. जी, पहले आप introduce करा दें अपने आप को. सर, माय नेम इज़ खुरम शहजाद. सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जिस तरह मैडम ने बताया कि आजकल के दौर में जॉब्स कम है, कंपटीशन ज़्यादा है. आजकल के दौर में मसलन मैंने MBA किया हुआ है, मुझे अगर सोशल सेक्टर की जॉब मिल रही है, आया मुझे उसी वक्त कर लेनी चाहिए या मुझे स्टे करना चाहिए? What we need to look at is कि आप बिजनेस में ग्रेजुएट कर रहे हैं, ओके, सो आप दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं करियर के लिए. एक तो आपने देखना है कि विच पार्ट ऑफ द बिजनेस. आजकल जनरलिस्ट की मार्केट नहीं है, इट्स अ स्पेशलिस्ट मार्केट. तो आप HR है या सेल्स है या मार्केटिंग या फाइनेंस, ये एरियाज़ हो जाते हैं. आगे जाके कमर्शियल में आपका वो बन जाता है परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट. सो आप ये देखें कि आपको कहाँ पे ग्रोथ मिलेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्केटिंग है, ऑल पीपल जो मार्केटिंग में यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में मार्केटिंग बहुत कम रह गई है, ब्रांडिंग बहुत कम रह गई है, क्योंकि ज़्यादातर कॉरपोरेशंस जो मल्टीनेशनल हैं उनकी सारी मार्केटिंग होती है या इंडिया में या रीजन में. उनका रीजन कुड बी सिंगापुर और एनी अदर प्लेस. यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूशन रह गई है. तो यूल हैव टू सी कि आपकी वही स्किल्स हों जो उन मल्टीनेशनल्स को चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए. या फिर आप कहें कि जी मैंने एडवर्टाइजिंग साइड पे जाना है मार्केटिंग में मेजर करके. द अदर मार्केटिंग इज़ मोर टू डू विद जैसे फार्मास्यूटिकल की मोर नॉलेज बेस्ड कि आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया. सो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने किस एरिया में अपने करियर को डेवलप करना है. इफ़ इट्स HR तो देन आपने देखना है HR में कॉम्पनसेशन बेनिफिट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, कौन सा एरिया है. एंड येस, टू आंसर योर क्वेश्चन कि अगर मल्टीनेशनल या कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं है और सोशल सेक्टर में, प्लीज़, बिकॉज in the beginning it doesn't really matter कि आपने कौन से सेक्टर में किया है. it's more the function itself कि आपने कौन से फंक्शन में काम किया है. और दूसरी चीज़ ये याद रखें कि आजकल जो टर्म यूज़ होती है कॉल्ड द न्यू नॉर्मल. द न्यू नॉर्मल की टर्म सेज कि दुनिया में इवेंचुअली जो स्किल बहुत मैटर करेगी वो एंटरप्रेन्योरशिप है. यानी आपको कोई भी बिज़नेस चलाने का कितना स्किल आपके पास है, कितना हुनर है आप में. तो अगर आपने अपना भी काम करके कुछ एंटरप्रेन्योरशिप या कोई छोटे स्केल पे बिजनेस भी किया है, सो दैट इन इटसेल्फ विल आल्सो हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू टू ऐड. 15.5 years experience in pharma industry, sales and marketing and FMCG. मेरा ये काबिल एहतराम रिस्पेक्टेड एंड डायनामिक पर्सनालिटी से क्वेश्चन है कि
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेशनल और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ट्रेनिंग्स मैंने सेमिनार्स आई हैव विजिटेड 8 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूरोप। मैंने एनुअल कॉन्फ्रेंस अटेंड की और अपने मैनेजमेंट एटीट्यूड ये तमाम चीज़ें जो है मैं सुन रहा हूँ सारी मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड की हैं। इवन कि मैंने खुद भी, क्योंकि मैं अभी लास्ट जो पोजीशन में काम कर रहा था जी, मैं लास्ट जो मेरी डेजिग्नेशन थी मैं आई वाज रीजनल सेल्स मैनेजर, एक बहुत रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा था, लेकिन मैं उनका नाम मेंशन नहीं कर सकता। बट मैं 6 मंथ से आई एम जॉबलेस। तो मुझे जो है ना ये तमाम पर्सनालिटीज़ से क्वेश्चन है कि इसकी आखिर क्या रीज़न है। मेरे पीछे एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन स्टिल आई एम जॉबलेस। Okay, so we can generalize this, and since we have a pharma guy sitting here. इससे पहले कि कामरान साहब मोहतरम हैं, वो यकीनन बेहतर जवाब देंगे, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप शादीशुदा हैं? आपको जॉब मिले ना मिले, मोहब्बत तो इसमें बहुत मिली होगी इस पीरियड में। यही रीज़न है कि मैंने फार्मास्यूटिकल से हट के अभी और इंडस्ट्री में मैंने नहीं काम किया, तो ना वही भी मेरी विलिंग है, लेकिन मुझे कुछ थोड़ी सी जो है ना यानी कि एक कहना चाहिए डिमोटिवेशन ज़रूर आई है, क्योंकि अभी तो मेरे गोडे गिट्टू में पानी है। तो अभी तक जनाब मैं एक मिडिल मैनेजमेंट तक पहुंच के अभी मेरी जॉब नहीं है, और आई हैव टेरिटरी एक्सपीरियंस या एक्सपोजर जो है तकरीबन हाफ पाकिस्तान से ज़्यादा मेरा टेरिटरी एक्सपीरियंस है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। मेरा जब जवाब ये था कि मोहब्बत बहुत मिली होगी, तो वो फार्मा की बात नहीं कर रहा था। आपकी अपनी बीवी और आपके बीवी के साथ बच्चों से बहुत मोहब्बत इस पीरियड में मिलती है, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को जो फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये मैं आपके तवज्जुह से, आपके सवाल के तवज्जुह से सबके साथ शेयर करूँगा कि फार्मा इंडस्ट्री के वाहिद लोग हैं जब वो बेकार होते हैं, जॉबलेस होते हैं, तो उनको अपने बीवी बच्चे बेइंतहा प्यार करते हैं और उनका प्यार और मोहब्बत बहुत मिलती है। उसकी वजह ये नहीं कि उस पीरियड में वो ख़ास पर निकल आते हैं, बल्कि उससे पहले वो घर होते ही नहीं हैं। सुबह शाम उनका कोई पता नहीं होता कि वो गए कहाँ आए कहाँ, लेकिन जब वो फारिग होते हैं तो फिर वो फील करते हैं कि यार मैं कहाँ रह रहा हूँ, ये मेरा ही घर है। तो बीवी बच्चे भी फील करते हैं कि अब्बा या मियाँ वापस आ गए हैं। कोई बात नहीं, आप इस पीरियड को इसी मोहब्बत के साथ गुजारें। फार्मा की इंडस्ट्री के जो लोग हैं कभी मार नहीं खाते, क्योंकि ना वो दिन के होते ना रात के, वो 24 आवर एम्प्लॉयज़ होते हैं, इसलिए कतन ना घबराएं। अब इसका जो टेक्निकल जवाब है कामरान साहब शायद ज़्यादा बेहतर देंगे। Very quickly, what I understood is कि आपका एक्सपीरियंस फार्मा का है, रीजनल सेल्स मैनेजर लेवल का। आई वुड बेसिकली इसमें यही है कि मिडिल मैनेजमेंट में जॉब्स कम निकलते हैं, and perhaps that could be one of the reasons. However, it might be a good time for you to see कि आपकी कौन सी transferable skills हैं from pharma to another industry, because pharma is a very specialized industry. So हो सकता है कि आपकी कुछ skills हों जो इस industry के अलावा, अब इसके अलावा FMCG में जाना विल बी एन इशू बिकॉज वो टोटली चैनल बेस्ड है। सो यही देखें कि बिज़नेस टू बिज़नेस, जैसे आपका बिज़नेस टू डॉक्टर की सेल्स होती हैं, सो सी विच ट्रांसफरेबल स्किल्स एंड लुक एट अनदर इंडस्ट्री ऑल्सो विच आई एम श्योर यू डूइंग इज़ वेल। दूसरी चीज़ आप ये देखें, विद सो मच एक्सपीरियंस माशाल्लाह 15.5 years, कंपनीज विल बी लकी टू हैव यू। सो आप ये देखिए, मे बी अदर देन सेल्स, look at positions in admin, look at positions in HR. You could be excellent in training in pharmaceuticals. So थोड़ा सा आप अपना horizon को expand करें. But with this experience, I'm sure it's not going to be very long before you find the right job. Well, I have done my MBA from NCBA in Human Resource Management. So my question basically ये है कि मेरा जो interest है वो HR के अंदर है, बिकॉज मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट इवेंट्स अपने ऑर्गेनाइज करवाए हैं, ट्रिप्स लेके गया हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। सो आई एम अ मेंबर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट इन NCBA। इस वक्त सिचुएशन जो मार्केट के अंदर चल रही है, मैंने कई इंटरव्यूज़ दिए हैं, वहाँ पे HR की पोजीशंस इतनी नहीं हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। अब इस पोजीशन के लिए मेरी डिग्री कंप्लीट है, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक और स्पेशलाइजेशन अगर मैं कर लूँ मार्केटिंग के अंदर, बिकॉज मार्केटिंग और HR आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक करते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू प्रेफर कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि इधर मेरी फील्ड जो आ रही है वो डिफरेंट डायरेक्शन पे निकल जाती है। एक तरफ मेरी HR फील्ड है, एक तरफ मेरी मार्केटिंग आ जाती है। अब मुझे इधर कन्फ्यूजन है कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए इस डिसीजन के लिए, क्योंकि मैं इस वक्त टोटली मैं
एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है. If you go with the multiple degrees or multiple qualifications, so it will always help you out. Because उसमें यही है, जैसे if you are not finding a good job in the market for the HR, so definitely if you have like good qualification, profound qualification in some other area, so definitely people would love to have you. And there are like, I already you told this thing, that multitasking thing is always helpful in all the job fields. तो अगर आप दूसरी डिग्री लेते भी हैं तो और कभी भी क्वालिफिकेशन आपको हमेशा हेल्प ही करती है. इट्स नॉट बैड कि अगर आप कोई और क्वालिफिकेशन ले लें तो आपको हेल्प आउट नहीं करेगी. इन सम एरियाज, इन सम लाइक स्फेयर ऑफ लाइफ, इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट. Excuse me, Miss Lisa, you talked about the positive attitude. This is a bit open-ended concept. So would you please quantify it a bit more? Thank you. Yeah, sure. I would just share my experience because being a head of the department and being a head of the training head, so what we have to do is like we have to always include in the different, the recruitment process. उसमें ये होता है कि when we hire someone, so like initially एक बंदे की बात बता देती हूँ कि like पहले हम देखते हैं कि बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आया है और बहुत एनर्जेटिक है, एंड सम टाइम लाइक आप फील करते हैं कि उसका जो है एटीट्यूड जो है पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव होना शुरू हो गया है. सो दैट द थिंग विच वी हैव टू वर्क ऑन. और बीइंग अ ट्रेनिंग हेड हम इन चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं. अब जैसे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, उसी के अंदर हमें पता चल जाता है कि हाउ मच पॉजिटिव एटीट्यूड दिस पर्सन मस्ट हैविंग, और उसके बाद वो अपना जो है इसको जॉब को कैसे कैरी ऑन करेगा. कुछ एरियाज़ में ऐसे होता है कि डेफिनेटली लाइक सम टाइम ह्यूमन बींग्स आर लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, तो उनको आइडेंटिफाई करना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है. लेकिन थ्रू द स्क्रीनिंग, और अगर आपकी एक्यूरेट स्क्रीनिंग प्रोसेस आपके साथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, तो 90% यू आर सक्सेसफुल टू हैव अ बेस्ट कैंडिडेट विद यू. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुजम्मिल. मेरा क्वेश्चन तमाम पैनलिस्ट से, तमाम ने डिस्करेज किया चेंज ऑफ इंडस्ट्री. एक बंदा एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, फौरी तौर पे या 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है. आपने डिस्करेज किया, लेकिन इंडस्ट्री वाले ख़ुद इसको करेज करते हैं कि जी आप हमारे पास आएँ, यू आर गेटिंग 18,000 पैकेज देयर, वी विल गिव यू 20,000. 2,000 का वो इंक्रीमेंट देते हैं आउट ऑफ 6 मंथ्स उसने की है. उसको 1 साल के बाद मिलना है, लेकिन उसको 6 मंथ्स में मिल जाता है. दूसरी इंडस्ट्री में जाता है, वहाँ से उसको एक और ऑफ़र आ जाती है, वो 1 महीने 1 साल के अंदर 3 इंक्रीमेंट्स ले लेता है. अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हो सकता है 10% उसको मिले. 10% इज़ 1,800, और वो 2,000 कभी इंक्रीमेंट उसको मिलती है, कभी उसको 3,000. सम केसेस में मैंने देखा है कि 6,000 की जंप भी मिल जाती है. तो इस क्राइटेरिया में जहाँ हम लोग रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इतनी महंगाई है, तो स्विच ओवर करने का उसको हक है. आप लोग क्यों डिस्करेज कर रहे हैं? यहाँ बैठ के आप डिस्करेज कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री वाले खुद ऑफर करते हैं. May I जी, first of all, I don't know how you have taken this perception that we are discouraging you to change. Like, you see, the career planning में अगर आप देखें तो 4-5 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं. पहला फैक्टर तो ये है कि you are working hard and you are performing, number 1. Number 2, there has to be someone who is recognizing your performance. Number 2. Number 3, there have to be some kind of the gaps within the organization where you can grow as well. ठीक है जी, ये तो 3 हो गए. And you should have maybe some kind of the mentor जो आपको साथ जो है वो गाइड करता हुआ लेकर जाए. ये 4 तो होंगी ऑर्गेनाइजेशन. 5वां फैक्टर मेरे पास जो है वो बड़ा हैरत अंगेज़ है, और वो ये है कि जी इफ़ यू रियली वांट टू डेवलप योर करियर, दैन रिजिग्नेशन इज़ द नेक्स्ट जो है वो है. बिकॉज जब आप एक पटरी पे जा रहे हैं और पटरी आगे से बंद हो गई, यू हैव टू चेंज दैट. तो मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि किसी ने ये बात आपसे कभी भी नहीं कही है कि यू शुड नॉट चेंज, बट you have to take into the account the various factors before you are changing, right? Sometime changing for 5,000 rupees may not make you very comfortable as well. आप ये देखिए कि आई थिंक a lot of people are talking about this कि जब हम सर्वे करवाते हैं तो पता चलता है जो एम्प्लॉयर है वो ये कहता है कि सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल फैक्टर है वो तो पैसे हैं, जबकि व्हेन यू गो टू एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय ये कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो फैक्टर है वो मेरी रिकग्निशन है, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है. अगर आपके पास इंट्रिंसिक या इंटरनली ऐसा मोटिवेशन नहीं है, पैसा वो कुछ नहीं कर सकता. यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव चेंज फॉर द मनी एंड देन आफ्टर सम टाइम दे सेड यार बड़ी गलती हो गई, वहाँ सुकून से था, पता नहीं मुझे क्या हो गया यहाँ पे. सो नोबडी हैव स्टॉप दैट कि आप ना चेंज करें, बट once you are into a profession, you are a professional, then make the decision based on
some kind of the logic, rationality, some factors. So if you do it, there is no harm in changing the jobs. I would just add with your permission, Kamran. I think when we are changing, talking about changing the jobs, one thing is very important. You should have some substantial achievement to show in your current job, right? So unless you have taken some appraisals during your performance in an organization, have been recognized by the organization, how can you claim you have added some value? Number of months is not the measure to see only, because experience without any addition of knowledge or value does not mean anything to anyone. So we'll continue this discussion further. We have another question. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरे कामरान साहब से सवाल ये है कि आई एम इन कंफ्यूजन कि मुझे जो है आई एम IT प्रोफेशनल. आई हैव डन माय BS IT ऑनर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड I want to do work in a mobile development which is relating to IT field, but there are less jobs relating to mobile development as compared to other jobs. So I should focus on my interest, or I should मुझे कोई और जॉब को तलाश करना चाहिए कि either I should just focus on my interest. Okay. देखो तुमने I'm sure जब आपने MBA किया तो strategic management तो पढ़ा होगा. MBA not, I have done MBA. Okay, whatever you have done, but I'm sure that उसमें कहीं ना कहीं strategic management तो आई होगी, where you are trying to create a fit between your own strengths and weaknesses and the external environment altogether. Unfortunately, I 100% agree with you that technology is changing very very fast, और इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है. बट मज़े की बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी है वो तो अब मोबाइल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो रही है. ऑल द बैंकिंग्स आर गोइंग ऑन टू द मोबाइल बैंकिंग. हम तो इस वक्त जो है वो वायरलेस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं. तो पहली चीज़ तो ये है. दूसरी चीज़, जब डिस्कशन हो रही थी, देयर इज़ नो हार्म टू ऐड मोर डायमेंशंस इनटू इट. अगर आप समझते हो कि इफ़ यू कैन ऐड ए मार्केटिंग डायमेंशन इनटू इट, देन यू माइट इवन हैव योर ओन फील्ड ऑल टुगेदर, राइट. और उसी में इफ़ यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट, जो मेरी पहले वाली बात थी, दैट यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग योर नॉलेज. यू सी, अगर आप इस वक्त इंडस्ट्री में देखते हो तो सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो बैंकिंग इंडस्ट्री में आया. आज से 5 साल पहले बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो स्किल था वो था इंटरपर्सनल स्किल्स. एडवांस ले आओ, डिपॉजिट्स ले आओ और एडवांस दे दो, दैट्स ऑल. दोस्ती बनाओ, यारी बनाओ, लोगों के साथ अपने जो है वो अकाउंट्स ट्रांसफ़र करो. आज वो सारी की सारी इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो गई हैं भाई. इट्स नॉट एप्लीकेबल. आज हम बात करें मोबाइल टेक्नोलॉजी की, आधी बैंकिंग जो है वो नेट पे चली गई है. मैं क्या करने जाता हूँ बैंक में इस वक्त, स्वाय एक चेक जमा कराने के लिए, पे ऑर्डर बनवाने के लिए, दैट्स आल्सो चेंजिंग. आई कैन डू इट ऑन माई सेल फोन एज वेल. सो इट्स मीन दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने शुरू में कही थी, जो सेंस ऑफ डेस्परेशन है, जो एंग्जाइटी है, जो तुम्हारा इमोशनल स्ट्रेस है, ट्राई टू ओवरकम दैट. The ultimately the success is bound to come to you. That's confirmed, right? Thank you. We have last question here. Me Ayaz, and I done recently MBA. Okay, my question is that कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन होता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं या आइदर आप टीम प्लेयर हो. तो ये दोनों चीज़ बहुत एक दूसरे से कोरिलेट करती है. आप एक चीज़ कहोगे तो दूसरे ही उसके जो है ना नेगेटिव पॉइंट्स जाएंगे. तो ये मेरा क्वेश्चन है कि इसके बारे में क्या कहेंगे. You are the expert. अच्छा, the two are not opposing roles, यानी they're rather complementary roles. अगर आप एक अच्छा टीम प्लेयर नहीं हैं तो आप कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं बन सकते. ठीक है. व्हेन दे आस्क यू अबाउट लीडरशिप, तो वो ये देखना चाहते हैं कि आप क्या अपना काम करने का स्टाइल और लोगों से इंटरेक्ट करने का स्टाइल और उनको काम डेलीगेट करने का स्टाइल एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं. द वर्ल्ड टुडे इज़ अबाउट सिचुएशनल लीडरशिप. हम ये नहीं कह सकते आप हमेशा ऑटोक्रेटिक रहें या डेमोक्रेटिक रहें या किसी एक स्टाइल में चलें. सो व्हेन दे आस्क यू अबाउट लीडरशिप, दे आस्किंग कि आप में क्या वो एबिलिटी है कि हर सिचुएशन में अगर आग लगी है तो ऑब्वियसली आप डेमोक्रेटिक नहीं होंगे, आप कहेंगे कि जी जो प्रोसीजर है वो फॉलो होना है. अगर स्ट्रैटेजी बनानी है तो आप डेमोक्रेटिक होंगे, सबकी ओपिनियन लेके चलेंगे. दैट्स द काइंड ऑफ स्किल सेट दे लुकिंग फॉर. सो आप गूगल लीडरशिप एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड लीडरशिप एज मच एज पॉसिबल. आप लोगों की जनरेशन माशाल्लाह इंफॉर्मेशन एज में रहती है, उनको तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इट्स एट दी इतनी अवेलेबल हैं. हमें तो किताबों के पीछे इतना जाना पड़ता था, लुकिंग इन फॉर बुक्स. एंड
हाँ हाँ, so just sort of understand the skill set, और जब आपसे ये पूछा जाए तो yes और no जवाब ना दें, आप इसकी कोई एग्जाम्पल दें कि जी मैंने कॉलेज में ये चीज़ की, ये सिचुएशन थी, ये प्रॉब्लम था, और थ्रू मैंने ये लीडरशिप स्किल्स यूज़ की और उसको सॉल्व किया. और इसी तरह अंडरस्टैंड टीम वर्क इज़ ऑल्सो अबाउट it's part of leadership, but it's a little different कि आप किस तरह से socially relate करते हैं, and give examples. I can only add one line into it. जो तुम्हारा सवाल है मैं समझ गया. You cannot lead an individual. You can only lead a team. So first of all, you have to develop a team. Then you can only lead it. That's the first part. So I think that's one is very important, right? अच्छा, at the same time, I would like to add to this very particular question कि लीडरशिप को हम क्यों टीम वर्क से ज़्यादा कर रहे हैं. लीडरशिप का मतलब है आपकी फॉलोअरशिप है. जब लोग आपको फॉलो करते हैं तो वो टीम बनते हैं, और जब आप टीम का हिस्सा हैं या टीम के लीडर हैं तो टीम वर्क तो ऑटोमेटिकली हो गया. तो केकशा वाज वेरी राइट कि तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ है आपकी. आज से ऑनवर्ड आप कहें मैं टीम प्लेयर भी हूँ और लीडरशिप तो मुझ में इन बिल्ट थी ही थी. और बताएं क्या करना है मैंने. ओके लीजा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? So I think they both are right. They're definitely, you know, you can't deviate yourself from one aspect to another. So if you are having the leadership skills in you, definitely you must be a good team leader as well. So these are two, you know, like traits that definitely complement each other. And teamwork is the first competency that we evaluate when we are assessing a leader. So you know they are not, you know, they're not separative or mutually exclusive of each other. Okay, I have few questions from, you know, like on behalf of my panel, I have the liberty to ask questions to the audience as well. आप ये बताएं आप में से कितने लोगों के LinkedIn पे profiles हैं? Okay, so this is like 2.5% of the audience. Okay, how many of you know the recruitment cycles of top employers in Pakistan? आपको पता है कि जो टॉप FMCs हैं या टॉप फार्मा कंपनीज़ हैं या टेलकोज़ हैं, इनके रिक्रूटमेंट साइकिल्स कब क्लोज होते हैं, कब शुरू होते हैं? यू हैव आइडिया अबाउट दैट? हैव यू डन सम होमवर्क ऑन दैट? कैन एनीबडी टेल मी अबाउट एनी 3 कंपनीज रिक्रूटमेंट साइकिल? नो. सो आर वी प्रिपेयर्ड? Somebody who is not experienced should actually know, you know, where they are applying. Is that position or that particular stream available at that point of time? And what if I tell you that the recruitment cycle of most of the top MNCs in Pakistan are not available all the year? So we should know ourselves, prepare ourselves first, and then when we apply, we should know that, you know, they are also looking for us, because it's not our priority or our choice only. It's a matter of what they are looking for. So please keep that in mind. And obviously we have the panel available after this Q&A session as well, so you can have further discussion with them. I'm very thankful to all the panelists for their precious time. Now I'll request Mr. Kamran Saeed to join me here and present the university souvenirs to the other panelists. First of all, I'll request Ms. Kehkashan Awan. Very useful insights by Kehkashan. Thank you, Kehkashan. Then I'll request Asim Shahzad Malik for his very comprehensive and incisive participation. Thank you, Asim. And now Liza is requested to please come over, and although she was not with us throughout the panel, but she's come all the way, and she has added some very useful tips for the students. Thank you, Liza. One I will announce to Adil Anwar, who is always very helping, and I get many information and many ideas of this job fair from Adil Anwar. Please give him a big hand. Now again the announcement is going to me, and I am going to do the announcement. The Kamran Saeed is a very great friend, always very helping, and always having extra opportunities for you people. So please give him a big hand for this.
and I would like Adil to represent the souvenir on behalf of Superior University to Kamran Saeed. Thank you very much. Thanks, Ali. Sir, thank you.